Now I cannot wait for other student, है ना कुछ, क्योंकि 9:20 is already done. Yes, sir. Yes, sir. Okay, good morning everybody. Good morning, sir. Morning, sir. Morning, sir. Anybody have any idea about the last lecture? What we discussed in last lecture? Anybody remember? Sir, odd-even function. Yes, very good. Some important results. Yes, Sir, very, periodic function. very good, very good. In last lecture we have discussed the introduction to Fourier series. Okay, हमने वो discuss किया था कि those who are important for the Fourier series topics we will discuss in the last lecture. Okay, so today we are continuing with this our unit Fourier series, and in today's session we are going to define our Fourier series. Okay, हम Fourier series define करेंगे first. So you can see on your screen Fourier series. So Fourier series is basically the series in the trigonometric functions. Okay, trigonometric functions जो sin and cos है उसका combination करके Fourier ने define किया था. So it is basically the addition of the trigonometric series, trigonometric function. So is it visible to all, everybody? Because today I think network is slow. Yes, sir. It is visible, sir. Okay, okay, thank you, thank you. So the Fourier series of the function f of x in the interval, this is the interval c less than x less than c plus 2 pi. So first one is the periodic function, okay, is given by the trigonometric series f of x is equal to a0 by 2 plus summation n equal to 1 to infinity an cos nx plus bn sin nx, where a0, an and bn are real constant known as the Fourier coefficient of the series. So means this is the Fourier series, formula for the Fourier series. Any function f of x which satisfy the some conditions, then that function can be write down in this way. For example, आपको पता है कि e raised to x की series क्या होता था? What is the series expansion of e raised to x? So 1 plus x square upon 2 factorial, yes or no? Plus x cube by 3 factorial and so on, है ना? आपको पता है ना ये? Yes. ओके, सो ऐसे ही सीरीज एक्सपांशन किया जाता है डॉट डॉट, सो इस हिसाब से वो डॉट 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 चला जाएगा. सो e raised to x का ये सीरीज है, तो ये जो सीरीज है उसमें हम x में लिखते हैं. नाउ वी आर गोइंग टू डिफाइन विद द cos and sin. Okay, so if you have the function which satisfies some properties to define the Fourier series, then you can write down that function in this form. Let me say 0 by 2 plus summation n equal to 1 to infinity an cos nx plus bn sin nx and so on. Okay, means यहाँ पे इसका stop हो जाएगा, इसमें so on नहीं आएगा. So any doubt in the formula? Anybody? No doubts. Okay. Now what we do for the examples or how we can find out the Fourier series? So these are the a0, an and bn. These three are known as the Fourier coefficient. So we find out this Fourier coefficient with the help of its formula and substitute here. Whatever we get, that is your required Fourier series. Do you understand, everybody? Yes. ओके, मीन्स हम a0, an and bn को फाइंड करेंगे और उसको ये फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट करेंगे, तब जाके हमारी फंक्शन जो गिवन फंक्शन होगा उसका फूरियर सीरीज एक्सपेंशन हमको मिलेगा. ओके, सो हाउ आई कैन फाइंड द a0? मुझे a0 फाइंड करना है तो मैं कैसे कर सकता हूँ? एनी आइडिया, एनी गेस वर्क? Sir, difference. सॉरी, Sir, difference. डिफरेंशिएशन नहीं सर, डिफरेंस दो पीरियड के बीच का मतलब वो डिस्टेंस. नहीं, ये मेरे पास है ही ऑलरेडी. सो इसमें से ही मुझे a0 करना है. फॉर एग्जाम्पल वो आप बोल रहे हैं पीरियड का डिफरेंस, उसमें तो आपको पीरियड p मिलेगा ना, दैट इज द c प्लस 2 पाई माइनस c. So it is my 2 pi. So this is the 2 pi periodic function. We are talking about the 2 pi periodic function. So how I can find the a0? a0 मुझे कैसे मिलेगा? सर जो फंक्शन का स्टार्टिंग होगा वो. नहीं, मुझे फॉर एग्जाम्पल आई हैव दिस वन, मेरे पास ये है. सो हाउ आई कैन फाइंड द a0? तो सिंपल है, बहुत ही सिंपल है. टेक इंटीग्रेशन बोथ द साइड.
in this interval. That means if I start with c to c plus 2 pi f of x dx with respect to x. Okay, so a0 by 2, that is the constant, so c to c plus 2 pi into dx, because I have one only, plus summation and integration both are the, you can say, continuous, so you can move each other, means आप समेशन को बाहर भी रख सकते हो, अंदर भी रख सकते हो, क्योंकि we know that the integration is the linearity property. Integration has the linearity property. So here again c to c plus 2 pi, here you have an cos nx dx plus integration c to c plus 2 pi bn, sorry, bn, okay, bn cos, sorry, sin है ना, sin nx dx, okay, sin nx dx कर सकते हैं कि ना में से, yes or no? yes sir. ओके, चलो तो वही है, मुझे a0 फाइंड करना है, तो आई टेक द इंटीग्रेशन बोथ द साइड, जो यहाँ पे देखो, नाउ टू ऑब्टेन द वैल्यूज ऑफ फूरियर कोएफिशिएंट कंसीडर दिस वन, ये मेरे पास है. नाउ फॉर a0 इंटीग्रेट द अबव इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू x इन c to c plus 2 pi. सो वी गेट, मैंने जैसे अभी लिखा था वही का वही पूरा स्टेप यहाँ पे लिखा हुआ, यू कैन सी. इज इट ओके? Yes. Okay, now if you refer the last lecture's formula, then say what is the answer of this one. हमने ये स्टडी किया था, तो इसका आंसर क्या था? 0. 0. Very good. And what about this one? 0. 0. So I can substitute 0 here because of the last lecture discussion. So यहाँ पे देखो a0 by 2. Now here 1 is there. 1 का integration x c to c plus 2 pi. Here we have 0 plus 0. So a0 by 2, here c plus 2 pi minus c. Okay, so here a0, then what we get here, here there is one step missing. So c cancel out, so we have 2 pi. So 2 will be cancel out. So my answer is a0 by a0 into pi, sorry. So a0 into pi means I want to make a0 subject. So a0 is equal to 1 upon pi integration c to c plus 2 pi f of x dx. So this is my formula for a0. Understand everybody? Yes, Okay, done? Yes. Yes, sir. Okay, now tell me how I can find an. an मुझे निकालना है, तो कैसे निकालेंगे? Similar approach is there. इंटीग्रेशन. Yes, sorry, yes. इंटीग्रेशन ही सर. हाँ, इंटीग्रेशन सेम अप्रोच करना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे अगर सेम अप्रोच करेंगे तो ये तो 0 हो रहा है, तो हमको कुछ नया सोचना पड़ेगा. तो कॉस के साथ जो लास्ट लेक्चर में हमने फॉर्मूला किया था, उसमें से नॉन जीरो आंसर वाला कोई फॉर्मूला है? देखो तो, चेक इट. कौन सा फॉर्मूला जो कॉस के साथ मुझे नॉन जीरो आंसर देगा है? cos nx. multiply with cos mx. Very good, very good. That means we have one formula, and what is it? So you can see here, देखो यहाँ पे क्या होगा, इंटीग्रेशन क्या था हमारा, c to c plus 2 pi cos nx into cos mx dx is equal to, we have the two values pi and 0. When pi? n equal to m, yes or no? And 0 Yes, sir. and not equal to m. So we can use this integration formula, okay, whatever we discussed in last lecture. So first we have to multiply whole equation by cos mx. Yes or no, everybody? Yes, sir. Yes, sir. Then we can integrate it. So यहाँ पे देखो, next one is for an, multiply on both sides of the above equation by cos mx and then integrate it with respect to x in c to c plus 2 pi. So we get integration c to c plus 2 pi. Left hand side में fx था हमारे पास, हमने cos mx से multiply किया. So here dx, okay, is equal to a0 by 2 integration c to c plus 2 pi. हमने पहले स्टेप में a0 by 2 ही था, तो cos mx को मल्टीप्लाई किया था ना, तो cos mx into dx हो जाएगा.
plus summation n equal to 1 to infinity is that big bracket a n इंटीग्रेशन c to c plus 2 pi. हमारी फॉर्मूला में सिर्फ cos nx था, यहाँ पे क्या मल्टीप्लाई किया है हमने cos mx, so वो भी साथ में आएगा dx प्लस vn थर्ड टर्म ऐसे आएगा क्योंकि वहां पे ब्रेक हो गया है, कट हो गया है, देखो यहाँ c to c plus 2 pi cos mx हमने मल्टीप्लाई किया है एंड ओरिजिनल दैट इज अ sin nx, तो sin nx dx. Now check our last lecture's formula and tell me what is the value of this one. जीरो. अभी हमने इसको तो यूज कर लिया. नाउ टेल मी व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस वन. जीरो, क्योंकि दिस इज द आई थिंक लास्ट फॉर्मूला है ना, कॉम्बिनेशन ऑफ द कॉस एंड साइन, तो वो तो ऑलवेज जीरो देगा. सो वी हैव ओनली दिस वन. ओके, अब इसमें भी क्या होता है देखो, चलो यहाँ पे लुक एट, ये ना, नहीं तो नहीं पता चलेगा व्हाटएवर आई वांट टू डिस्कस विद यू. सो यू कैन सी हियर फर्स्ट सब्स्टिट्यूट n इज इक्वल टू 1. तो व्हाट आई हैव इंटीग्रेशन c to c plus 2 pi. ओके, an को मैं अभी कॉन्सेंट्रेट नहीं कर रहा हूँ क्योंकि an तो एज इट इज रहेगा. फर्स्ट आएगा cos mx into cos x dx. Yes or no? Yes, sir. Then second मेरा आएगा इंटीग्रेशन c to c plus 2 pi. When I substitute n is equal to 2, तो cos mx into cos 2x dx and so on. Then dot dot dot. बीच में एक ऐसा टर्म आएगा इंटीग्रेशन c to c plus 2 pi when n is equal to m. तो cos mx into cos mx dx. Okay, and so on again dot dot dot. Okay, now if you use this formula जो मैंने यहाँ पे लिखा है इंटीग्रेशन c to c plus 2 pi cos nx cos mx is equal to pi and 0. So n equal to m होगा तब pi होगा, otherwise it will be 0. तो यहाँ पे देखो मैंने जितने भी टर्म लिखे हैं उसमें आप वेरीफाई करोगे तो फर्स्ट का आंसर क्या आएगा, इसका आंसर क्या आएगा बोलो. जीरो. क्योंकि m यहाँ पे और यहाँ पे 1 है, दैट मींस m नॉट इक्वल टू n वाला केस हो गया. यहाँ पर भी 0. सिर्फ जिंदा कौन बचेगा, ये m इक्वल टू n वाला है ना, तो इसका आंसर हमारे पास पाया आएगा. यस और नो एवरीबॉडी? Yes, sir. ओके, और यहाँ पे मैं m लिखूं या n लिखूं कोई चेंज नहीं होने वाला है क्योंकि ये फॉर्मूला तो हम m इक्वल टू n के लिए ही है ना. तो यहाँ पे मैंने n में लिखा है. देखो इंटीग्रेशन c to c plus 2 pi cos into cos, दैट मींस cos स्क्वायर mx की जगह पे मैंने nx किया dx. ओके, अब इसका तो आंसर हमको पता ही है, मैंने अभी बताया कि उसका आंसर पाई हो जाएगा. सो an into पाई बचेगा. अब ये मैंने इसलिए डिस्कस किया कि ये स्टेप में से ये स्टेप में समेशन कहा गया, इसका वो आंसर है. ओके, क्योंकि समेशन निकल गया तो आपको क्वेश्चन भी होना चाहिए ना कि सर समेशन कहा गया. तो समेशन मैंने ऐसे ओपन किया और उसमें से मैंने सिर्फ एक ही टर्म पे मेरा नॉन जीरो हो रहा है, बाकी सारी टर्म जीरो हो रहा है. दैट्स व्हाई आई एम राइटिंग हियर ओनली नॉन जीरो टर्म. ओके, अंडरस्टैंड एवरीबॉडी? सर cos स्क्वायर nx कैसे आया? cos स्क्वायर nx मींस यहाँ पे m इक्वल टू n वाला केस है ना, तो सिर्फ वही बचेगा. दैट मींस मैंने क्या किया, m की जगह पे n ही रखा. That means cos nx into cos nx. So it will be cos square nx. Yes. Okay. Done? Yes. Okay. Means मेरा m equal to n है तो मैं m भी लिख सकता हूँ, n भी लिख सकता हूँ. आप यहाँ पे m लिखेंगे तो पर भी राइट है, यहाँ पे n लिखेंगे तो पर भी राइट है. नॉट ए इश्यू. ओके, दोनों सेम ही हो रहा है इसीलिए. सो ये an पाई, अब इसमें से an को सब्जेक्ट बना दो. दैट मीन्स an is equal to 1 upon pi इंटीग्रेशन c to c plus 2 pi f of x cos nx. यहाँ पे n की जगह m की जगह पे अब क्या आएगा, n आएगा nx dx, क्योंकि we are considering m equal to n इसके लिए. Done? Everybody understand? Yes, sir. Yes, sir. कोई डाउट नहीं है ना? ओके. देन नेक्स्ट bn के लिए सेम प्रोसीजर, बट वी हैव टू मल्टीप्लाई बाय sin mx. ओके, उसमें किससे मल्टीप्लाई करेंगे, sin mx को, क्योंकि लास्ट को मुझे जिंदा रखना है. दैट मीन्स मेरा लास्ट यहाँ पे हो जाएगा bn c to c plus 2 pi. सेम प्रोसीजर विल बी देयर, है ना, सेम प्रोसीजर करना है. sin mx से मैंने मल्टीप्लाई किया हुआ है, sin nx वहाँ पे ऑलरेडी था, एंड dx.
तो इंटीग्रेशन c to c plus 2 pi f of x sin mx dx is equal to a0 by 2 integration c to c plus 2 pi sin mx dx plus summation n equal to 1 to infinity an integration c to c plus 2 pi sin mx cos nx dx plus bn integration c to c plus 2 pi sin mx into sin nx dx. Okay, everybody understand? Yes, sir. Okay, now again this will be 0, so this is the 0 and this will be also 0 because of the sin and cos दोनों साथ में combo, है ना? तो ये दोनों का combine है तो वो 0 हो जाएगा. Now think about this one. Again same idea is there. This is only non-zero for m is equal to n case. Otherwise it will be 0. So उसके लिए आंसर आ जाएगा pi. और यहाँ पे मुझे मिल जाएगा c to c plus 2 pi sin square mx dx, but I am taking m is equal to n, so I can write down sin square nx dx also. Yes or no? Yes, sir. Okay, और यहाँ पे क्लोज आएगा क्योंकि यहाँ से स्टार्ट हुआ था. Yes, so bn into this will be pi, so bn into pi, so bn is equal to 1 upon pi integration c to c plus 2 pi f of x sin nx dx. So we have the total 4 formula. कौन सी formula हुई? 4. Number 1, f of x is equal to a0 by 2 plus summation n equal to 1 to infinity original, है ना? n equal to 1 to infinity an cos nx plus bn sin nx. So this is my formula number 1. Okay. Then second one is the a0. मुझे a0 कैसे find करना है? So a0 is equal to 1 upon pi integration c to c plus 2 pi f of x dx. That is my second formula. Then third formula is for an. So an is equal to 1 upon pi integration c to c plus 2 pi f of x cos nx dx. And fourth formula, that is for bn. So bn is equal to 1 upon pi integration c to c plus 2 pi f of x into sin nx dx. Okay, so you have to remember this 4 formula, then you can calculate or you can find the expression for the Fourier series. Understand everybody? Yes, sir. Okay, now I want to share one things. Okay, यहाँ पे देखो f of x is equal to a0 by 2. अब कुछ बुक में आपको ऐसे भी मिलेगा तो वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ. You can see here everybody. तो जब आप बुक रिफर कर रहे हो तब आपको ऐसे भी मिलेगा. So don't worry about it. इसीलिए आपको डिस्कस कर रहा हूँ. जैसे आप कोई भी रेफरेंस बुक ले रहे हो तो इसमें 2 टाइप की फूरियर सीरीज की फॉर्मूला दिखाई देगी. एक तो ये हमारा नंबर 1 है वो, एंड सेकंड वन इज a0. सिर्फ यहाँ पे a0 लिखा होगा, by 2 नहीं दिया है. Summation n equal to 1 to infinity, बाकी का सब कुछ as it is. an cos nx plus bn sin nx dx. So if you refer any reference book, then you will find this is also the Fourier series. Why? Because 2 is adjusted here. तो वो 2 कहाँ पे दिखेगा? So you can see here. तो यहाँ पे जो 2 है वो यहाँ से हमारा निकल जाएगा. Yes or no? है ना? Yes. So यहाँ पर भी 2 नहीं आएगा. अब यहाँ पे 2 नहीं आया तो हमारी जो फॉर्मूला थी उसमें यहाँ पे 2 मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा. So यहाँ पर भी 2 आ जाएगा. So your formula of a0 will be changed. And what is it? a0 is equal to 1 upon 2 pi हो जाएगा ना? Yes, sir. हाँ यस सर. नहीं, यहाँ से कैंसिल नहीं होगा ना, क्योंकि 2 pi is there. तो अब ये जो 2 pi है पूरा वहां पे जाएगा ना. So 1 upon 2 pi. a0 को ही मुझे सब्जेक्ट बनाना है. Understand everybody? Yes, sir. नहीं पता चला तुझे? देख यहाँ पे क्या है, c plus 2 pi minus c. तो c कैंसिल होके कितना बचेगा? 2 pi. अब यहाँ पे 2 कैंसिल हो रहा था तो अब 2 pi as it is रहेगा यहाँ पे. तो यहाँ पे 2 pi बचा. तो हमारा टोटल आंसर क्या आया? 2a0 pi. अब मुझे a0 को ही सब्जेक्ट बनाना है तो क्या हो जाएगा? a0 is equal to 1 upon 2 pi हो जाएगा. So everybody understand? Yes, sir.
लेकिन ये a0 में ही वेरिएशन आ रहा है, इसलिए मैं ये वाला नहीं ले रहा हूँ, क्योंकि बाकी में तो 1/पाई है ना, तो वो हम चेंज नहीं करेंगे. सो वी विल यूज ओनली दिस फॉर्मूला for the examination and for every point or every discussion of the Fourier series. Okay, everybody? So we fix it. We will use this one. Okay, done? Okay, everybody? Yes. Chalo. Then, okay. So this is the Fourier series and its coefficient. Now, this coefficient will also find by the Eulers. So it is also known as the Eulers. कभी-कभी उसको यूलर भी बोलते हैं कोई लोग प्रोनाउंसिएशन में, और ऑयलर्स भी बोलते हैं. सो ऑयलर्स फॉर्मूला, सो ऑयलर्स फॉर्मूला इज सेम फॉर्मूला जो हमने डिराइव किया a0 an and bn के लिए. सो दिस इज गिवन बाय द Fourier and this is given by the Eulers for the coefficient, इसलिए उसको बोलते हैं Eulers formula. Okay, so the Fourier series of function f in c to c plus 2 pi, तो c to c plus 2 pi is nothing but c less than x less than c plus 2 pi. हम इसको ऐसे ही लिख सकते हैं, है ना. So is given by f of x is equal to a0 by 2 plus summation n equal to 1 to infinity an cos nx plus bn sin nx, where a0 is equal to 1/pi इंटीग्रेशन c to c plus 2 pi f of x dx, जो अभी हमने डिराइव किया. n is equal to 1/pi इंटीग्रेशन c to c plus 2 pi f of x cos nx dx, वो भी हमने डिराइव किया. एंड bn is equal to 1/pi इंटीग्रेशन c to c plus 2 pi f of x into sin nx dx, which is also derived in previous slide. Okay, done everybody? Okay, now this is for the particular p is equal to 2 pi period, but sometimes you need this one also, 1 less than x less than c plus 2, sorry no c में नहीं आएगा. yes, -1 less than x less than 1. कोई बोलेगा कि सर मुझे इसमें भी फूरियर सीरीज फाइंड करना है, तो कैन वी फाइंड? सो यस, वी कैन फाइंड इन दिस इंटरवल ऑल्सो, है ना. सो -1 लेस देन x लेस देन 1 में भी हम फूरियर सीरीज फाइंड कर सकते हैं, लेकिन दिस ऑल एक्सप्रेशंस आर वैलिड ओनली फॉर द c लेस देन x लेस देन c प्लस 2 पाई. मींस ये जो सारे एक्सप्रेशन है वो वैलिड किसके लिए? सिर्फ c लेस देन x लेस देन c प्लस 2 पाई. तो अब जनरल के लिए भी हो सकता है. मीन्स अगर आप कोई भी l लो, l अगर आपके पास मिलता है, मीन्स कोई पीरियड p मिलता है, तो उसके लिए आप कैसे फाइंड करेंगे? तो इसका एक्सटेंशन किया हुआ है इन जनरल. तो यू कैन सी इन जनरल. सो इन जनरल द फूरियर सीरीज ऑफ फंक्शन f इन इंटरवल क्या कर दिया? c लेस देन x लेस देन c प्लस 2l. वहां पे l पाई था, है ना. अगर l की जगह पे दूसरा कोई वैल्यू लेते हो देन यू कैन ऑल्सो फाइंड. इज डिफाइंड एज, तो वेरिएशन कितना हुआ? यू कैन सी हियर, f of x is equal to a0 by 2 plus summation n equal to 1 to infinity bracket an cos n pi x by l plus bn sin n pi x by l. ओके, तो यहाँ पे जो है वो पाई बाय एल मल्टीप्लाई में आ गया. देखो प्रीवियस फॉर्मूला और ये फॉर्मूला में देखो, यहाँ पे nx था, उसकी जगह पे क्या आ जाएगा? n pi x by l. ओके, प्लस bn sin n pi x by l, where a0 is equal to हो जाएगा 1/l इंटीग्रेशन c to c plus 2l f of x dx. an is equal to 1/l इंटीग्रेशन c to c plus 2l f of x cos n pi x by l dx. and bn is equal to 1/l integration c to c plus 2l f of x into sin n pi x by l dx. So these are the general formula. So I always remember this one. Okay, मैं पूरा यही याद रखता हूँ. So I can do any example from this formula. Okay, आपको कोई भी example दिया है, अगर आप ये करेंगे you will get your answer. Okay, लेकिन अगर ये यूज करना है, so you keep in your mind this is only valid for c less than x less than c plus 2 pi. Everybody understand? पता चला? Everybody online में? यस सर. ओके, रिपीट करने की जरूरत है?
चलो तो मैं आपको बता देता हूँ कि रिपीट में क्या है कि यहाँ पे जो हमारी फर्स्ट फॉर्मूला जो हमने डिराइव किया और सब कुछ जो भी डिस्कशन किया ऑयलर्स का, वो c लेस देन x लेस देन c प्लस 2 पाई के लिए वैलिड था. ओके, नाउ वी आर डिफाइनिंग सेम फॉर द general interval, that means c less than x less than c plus 2n. So how we can define it? So there is a variation in the angle also. Okay, so f of x is equal to a0 by 2 plus summation n equal to 1 to l an cos n pi x by l plus bn sin n pi x by l हो जाएगा, where a0 is equal to 1 upon l integration c to c plus 2l fx dx हो जाएगा. an मेरा हो जाएगा 1 upon l integration c to c plus 2l fx cos n pi x by l dx हो जाएगा, and bn is equal to 1 upon l c to c plus 2l fx sin n pi x by l dx हो जाएगा. So this is the variation for the in general, means अगर आप ये use करते हो तो this is true for all the interval. Okay, understand everybody? Yes, sir. Yes. So I always remember this, so you can also remember this one, है ना. तो इसी से मैं ज्यादातर एग्जांपल करता हूँ, तो मेरा हर एक में आंसर आ जाता है, क्योंकि यही मेन है. अगर ये आपने अच्छी तरीके से रिमेम्बर कर दिया है ना, कीप इन योर माइंड, ओके, देन यू विल फाइंड आउट द फूरियर सीरीज फॉर एनी एग्जांपल. आप हर एक एग्जांपल में फूरियर सीरीज फाइंड कर सकते हो, नॉट अ इश्यू. ओके, देन जैसे हमने लाप्लास में देखा था कि लाप्लास में कुछ फंक्शन का लाप्लास ट्रांसफॉर्म नहीं मिलता है. इज इट ट्रू और फॉल्स? है ना? Yes. ओके, तो वहां पर हमारे पास रिस्ट्रिक्शन था. इफ द फंक्शन हैज इफ द फंक्शन इज पीरियोडिक फंक्शन, सॉरी पीरियोडिक नहीं, वहां पे था पीस वाइज कंटिन्यूअस एंड एक्सपोनेंशियल ऑर्डर फंक्शन. ओके, दो प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है, देन वी कैन से दैट इट हैज द लाप्लास ट्रांसफॉर्म. सिमिलरली फूरियर सीरीज फाइंड करने के लिए उसको डिरिचलेट कंडीशन सेटिस्फाई करवानी पड़ती है. तो डिरिचलेट कंडीशन क्या है? सो एनी फंक्शन f of x can be expressed as f of x is equal to a0 by 2 plus summation n equal to 1 to infinity as cos nx plus bn sin nx. So आप कोई भी फंक्शन को इस फॉर्म में लिख सकते हैं if it satisfy these three condition. So condition number 1 क्या है? f of x is periodic होना चाहिए, single valued होना चाहिए and finite होना चाहिए. That is the first condition. Second condition is f of x has a finite number of discontinuities in any one period. ये means अगर आपके पास discontinuities है तो कैसी होनी चाहिए? फाइनाइट होनी चाहिए. दैट मीन्स आपको पता चलना चाहिए कि ये फंक्शन 5 टाइम्स डिसकंटिन्यूअस है, 10 टाइम्स डिसकंटिन्यूअस है, 100 टाइम्स डिसकंटिन्यूअस है, तो यू कैन सिलेक्ट इट. ओके, आप इसको ले सकते हैं. लेकिन अगर आप ऐसा बोले कि आई कैन नॉट जज दैट दिस इज डिसकंटिन्यूअस एट infinite time, okay, then you cannot use this concept. Okay, then number 3, f of x has finite number of maxima and minima, means उसके पास नंबर फाइनाइट में मैक्सिमा एंड मिनिमा होना चाहिए इन एनी वन पीरियड. ओके, दैट मीन्स यू कैन आइडेंटिफाई द मैक्सिमा एंड मिनिमा ऑफ दैट फंक्शन विद द फाइनाइट नंबर. सो दीज 3 conditions are satisfied by the function, then you can say that that function can be write down in the Fourier series expansion. Understand everybody? Yes, sir. Okay, Yes, sir. अगर ये 3 कंडीशन सेटिस्फाई होगा तब जाके आप बोल सकते हो कि ये फंक्शन के पास फूरियर सीरीज है, एंड यू कैन राइट डाउन इन दिस वे आल्सो. ओके, ये जो एक्सपेंशन है उसमें आप लिख सकते हो. नाउ आई डिस्कस वन बाय वन. पीरियोडिक तो हमने डिस्कस कर लिया, यस और नो, है ना? Yes, sir. ओके, अब सिंगल वैल्यूड मीन्स अगर आपका फंक्शन सिंगल वैल्यू देता है तो मीन्स उसका आउटपुट एक ही होना चाहिए. फॉर एग्जांपल इफ आई कंसीडर f of x इज इक्वल टू x स्क्वायर, तो f of x इज इक्वल टू x स्क्वायर में मैं 1 रखूं तो क्या आंसर आएगा? 1. -1 रखूं तो 1, 1. 2 रखूं तो 4, 4 एंड 100 रखूं तो 100 10 स्क्वायर, है ना? यस और नो? ओके, लेकिन Yes. आंसर तो एक ही आ रहा है ना, यस और नो? आंसर तो एक ही आ रहा है कि नहीं? Yes, sir.
है ना, मीन्स ऐसा नहीं है कि एफ ऑफ वन फाइंड कर रहा हो तो उसके लिए दूसरी भी कोई वैल्यू एग्जिस्ट हो रही नहीं है ना ऐसा. नो सर. So that means it is the single value. Understand everybody? Okay? यस सर. Okay. Now finite. Finite means जैसे हमने चेक किया कि f of 1 1 है, f of minus 1 1 है, f of 2 4 है, f of 100 100 स्क्वायर है. मीन्स ये सारी वैल्यू आप जानते तो हो कि नहीं? फाइनाइट है ना, कोई नंबर तो है ना. Yes or no? Yes. यस सर. मीन्स किसी का आंसर ऐसा तो नहीं आ रहा है ना कि f ऑफ दिस वैल्यू इक्वल टू इनफाइनाइट, ऐसी तो कोई नहीं मिल रही है. Yes or no? Yes, sir. So that means that function is finite. Okay, understand? यस सर. Okay. Yes, Next sir. one is finite number of discontinuity. इसको मुझे ग्राफिकली आपको समझाना पड़ेगा. Finite discontinuity means इस हिसाब से देखो. For example, ये मेरा फंक्शन है. Okay? Graphical representation of the function x and y is equal to f of x. So if I draw here, then for example मेरा यहाँ तक था, फिर वहाँ से वो discontinuous होके ऊपर चला गया, फिर ऊपर चला गया, फिर ऊपर चला गया, है ना. ऐसे करके मीन्स अगर आपके पास डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है, मीन्स इफ आई राइट डाउन f of x इज इक्वल टू फॉर एग्जांपल f1x, और उसके लिए मैंने डिफाइन किया a1 लेस देन x लेस देन a2, देन f2x उसके लिए डिफाइन किया a2 लेस देन x लेस देन a3 एंड सो ऑन करके fnx, और उसके लिए मैंने लिखा a3 था ना यहाँ पे, तो an प्लस 1 लेस देन x लेस देन an प्लस 2. यस और नो, है ना. सॉरी गलती हो गया, an आएगा यहाँ पे, an आएगा एंड यहाँ पे an प्लस 1 होगा. यस, an प्लस 1. ओके, तो यहाँ पे देखो मीन्स मेरा फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है, लेकिन कितनी बार है, कितने पार्टीशन करके दिए हैं, कितने हैं पार्टीशन एवरीबॉडी? एन. n. वेरी गुड. तो मैंने मेरा फंक्शन है वो n बार डिसकंटिन्यूअस है. कितनी बार डिसकंटिन्यूअस है? n बार. लेकिन जो n बार बोला वो फाइनाइट तो हुआ कि नहीं? यस और नो? अंडरस्टैंड, सर. है ना. यस सर. तो इसको बोलते हैं फाइनाइट टाइम्स डिसकंटिन्यूअस फंक्शन. ओके, तो ऐसे फंक्शन के लिए भी आप फूरियर सीरीज फाइंड कर सकते हो. यहाँ पे देखो ये फंक्शन कितनी बार डिसकंटिन्यूअस है, कौन बताएगा? 4 टाइम्स, है ना. 1 2 3 एंड 4. यस और नो? यस सर. तो ये 4 टाइम्स आप बोल तो पाए ना कि ये 4 टाइम्स है. मीन्स ऐसा नहीं है कि यहाँ पे डॉट डॉट आगे बढ़ रहा है. दैट मीन्स दिस इज नोन एज दी बट सर yes finite number of discontinuities. So do you understand everybody? Second point. यस सर. Yes, sir. Okay, then third one, f of x has finite number of maxima and minima. सर yes सर ये बोलो. सेकंड कंडीशन में जो वो दिया होगा पीरियड, हाँ, वो इंफिनिटी तक तो फाइनाइट ही दिया होगा ना सर? फाइनाइट होगा ना बेटा. पीरियोडिक तो पहली कंडीशन में ही आ गया ना, यस सर. है ना. तो वो तो ऑटोमेटिकली फाइनाइट नंबर ही होगा वहां पे तो इंटरवल में. ओके. ओके, चलो थर्ड देखते हैं. f of x has finite number of maxima and minima. So finite number of maxima and minima means उसमें क्या होगा? For example, if I draw a function, चलो मैं एक फंक्शन ड्रॉ करता हूँ, तो फंक्शन में आप देख के मुझे बताओ कि उसके पास कितने मैक्सिमम है कितने मिनिमम है, कोई पर्टिकुलर इंटीग्रल. So you can see I draw graphical representation of a function. चलो इसको ऊपर ले लेता हूँ. यस, इसको ऊपर ले लेंगे तभी मैक्सिमम एंड मिनिमम दोनों मिलेंगे ना. यस, ओके. सो दिस इज माय x एंड दिस इज माय f ऑफ x. ओके, f ऑफ x मींस मेरा y. ओके, अब यहाँ पे देखना एवरीबॉडी. सो आई ड्रॉ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द फंक्शन. ओके, एंड सिमिलरली यहाँ पर भी
ऐसा फंक्शन हो सकता है कि नहीं? यस और नो? Yes, sir. Okay, so for example, I want to find or I want to check the maximum and minimum point for 0 to a. मैंने ये a point fix किया है, तो यहाँ पे 0 to a, तो उसके मैं सब इंटरवल ले लूँ. फॉर एग्जाम्पल आई टेक दिस वन. ओके, तो यहाँ पे मेरा है फॉर एग्जाम्पल a/3 है ना, मेरा a/3 मीन्स जो भी आप a लो उसका थर्ड पार्ट. ओके, तो यहाँ पे मेरा ये यहां तक का इंटरवल अगर आप जूम करेंगे तो उसके पास कितने मैक्सिमम पॉइंट है? दिस वन इज मैक्सिमम पॉइंट. यस और नो? Yes, sir. उसके पास मिनिमम पॉइंट भी है यहाँ पे. वेरी गुड, है ना. तो मीन्स आप काउंट तो कर सकते हो ना कि इसके ये 0 to a/3 में इतने मैक्सिमम है, इतने मिनिमम. 0 to a में चेक करते चलो. सो 0 to a में ये मैक्सिमम हुआ है ना, ये भी मैक्सिमम है ना अगर आप पार्टीशन में ले लो तो, है ना. फिर यहाँ पर मिनिमम है, ये सारे पॉइंट मिनिमम ही बोल सकते हो अगर आप उसको पार्टीशन में लेंगे तो. लेकिन इसके पास मैक्सिमम एंड मिनिमम काउंटेबल तो है ना कि आप उसको काउंट कर सकते हो. यस और नो? फाइनाइट बोल सकते हैं कि नहीं? Yes, sir. है ना. सो दैट इज द थर्ड कंडीशन. मींस थर्ड कंडीशन, व्हाट इज आवर थर्ड कंडीशन? f of x हैज फाइनाइट नंबर ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा इन एनी वन पीरियड. मींस एक पीरियड में उसके पास फाइनाइट नंबर ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा होने चाहिए. सो डू यू अंडरस्टैंड एवरीबॉडी? Yes. Okay, any question, any query in the Dirichlet's condition? No, sir. What about others? Please confirm yourself. No doubt, sir. Offline में कोई doubt है? Okay. Then we go for the first. Okay. Then note is that above condition is also valid for the function defined in the intervals minus pi to pi, minus L to L and 0 to 2L. मीन्स अगर आप ये तीन इंटरवल लेंगे तो ऊपर भी ये कंडीशंस वैलिड ही है. अब ये तीन इंटरवल जो है ना वो हमारे मेन इंटरवल के सब पार्ट है. कैसे देखो यहाँ पे c लेस देन x लेस देन c प्लस 2L, दैट इज माय ओरिजिनल इंटरवल. यस और नो? अगर मैं जनरल इंटरवल सोचता हूँ तो, है ना एवरीबॉडी, ये मेरा जनरल इंटरवल है. यस और नो? Yes, sir. Okay. Now I want to focus on the first interval. So what should be my c? c क्या होगा फर्स्ट के लिए? पाई होगा या माइनस पाई होगा? Minus 5. माइनस पाई. ओके, सो यू कैन सी हियर, अगर आप c इज इक्वल टू माइनस पाई रखेंगे तो होगा आपका माइनस पाई लेस देन x लेस देन c प्लस 2L. ओके, दैट मीन्स माइनस पाई, देखो यहाँ पे ये लेस देन, यस लेस देन होगा माइनस पाई प्लस 2L. तो उस टाइम पे आपका L क्या होना चाहिए? L क्या होना चाहिए? पाई ना? Pi. यस. तो आपका जब L पाई होगा एंड C माइनस पाई होगा तब आपको ये इंटरवल मिल जाएगा कि नहीं? यस और नो एवरीबॉडी? Yes, sir. सो इसमें मुझे बताओ चलो, व्हाट शुड बी माय C एंड व्हाट शुड बी माय L? L इज द L, है ना, यहाँ पे सीधा L ही, तो वो तो L ही रहेगा ना क्योंकि L में आंसर है, तो उसके लिए तो जनरल फॉर्म. चलो C क्या लेंगे? Minus L. Minus L. Very good. And now tell me about this one. What should be my C? 0. Zero. Minus 2L. Yes. L मेरा क्या होगा? L होगा. तो यहाँ पे मेरा L होगा L/2. आपने वो नहीं देखा. देखो यहाँ पे मुझे माइनस L to L चाहिए तो मेरा L/2 होगा ना यहाँ पे. या दूसरा कुछ Yes, होगा? sir. चेक करो, चलो चेक करो. नहीं नहीं नहीं, ये डाउट है मुझे. चलो ये तो L हो जाएगा, चलो वो तो सही है, लेकिन इसमें मुझे डाउट है. चलो बोलो क्या होगा? रखो यहाँ पे माइनस L लेस देन x लेस देन यहाँ पे माइनस L प्लस 2L. तो L ही आ गया ना वापिस? यस, तो L ही आएगा. डन, वेरी गुड. ओके, अंडरस्टैंड एवरीबॉडी? Yes, sir. ओके. अब हर एक एग्जाम्पल में
आपको L फाइंड करना है तो कैसे करना है वो मैं आपको नेक्स्ट में बताता हूँ. चलो नाउ वी गो फॉर द फर्स्ट एग्जांपल. So is there any doubt, any question up to here? No doubt, no question, sir. Okay. So first example, find the Fourier series of f of x is equal to x square in the interval 0 to 2 pi. So you have to follow 5 steps. कौन से 5 step follow करना है तो you can see here. Step number 1, write down, that means state फॉर्मूला फॉर फूरियर सीरीज. फूरियर सीरीज की जो आप जो भी यूज करना चाहते हो वो फॉर्मूला स्टेट करो, लेकिन मेरा तो एक आपको सजेशन है कि यूज द जनरल फॉर्मूला ऑफ द फूरियर सीरीज. ओके. देन नंबर 2, फाइंड a0. उसके लिए भी हमारे पास फॉर्मूला है, उससे हम a0 फाइंड करेंगे. स्टेप नंबर 3, फाइंड an. स्टेप नंबर 4, फाइंड bn. And step number 5, substitute values of a0, an and bn in Fourier series. जो भी आपको Fourier series हमने स्टेट किया था उसमें आपको a0, an and bn की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है. So is it okay everybody? Yes, sir. Yes, sir. Okay, so you have to follow these steps. Step 1, 2, 3, 4, 5. Okay. Now step number 1. चलो step number 1. तो here f of x is equal to x square जो आपको दिया है वो, and interval 0 to 2 pi. ये तो हमारा 0 स्टेप है ना, ये तो हमको हर एक में लिखना पड़ेगा कौन सा फंक्शन है, क्योंकि आप पेपर में नहीं लिख रहे हो, आप सप्लीमेंट्री में लिख रहे हो, इसलिए कॉपी तो करना पड़ेगा पहले. ओके. सो नेक्स्ट, द फूरियर सीरीज is f of x is equal to a0 by 2 plus summation n equal to 1 to infinity an cos n pi x by l plus bn sin n pi x by l. Done. So this is your number 1. Say it is question number 1. And L की वैल्यू आपको चाहिए. So what should be my L for this interval? तो उसको कैसे फाइंड करना है? तो everybody look at here. So this is my given interval 0 less than x less than 2 pi. Okay. And my general interval is c less than x less than c plus 2l. Yes or no? Yes, sir. So compare both sides. So I have c is equal to 0 left hand side, and right hand side c plus 2l is equal to 2 pi. Okay. So c is equal to 0, substitute here. So 0 plus 2l is equal to 2 pi. So what should be my L? L is equal to pi. Okay. So L is equal to pi. So you can find your L in this way. So is there any doubt, any question in step number 1? Anybody? No, sir. Okay. No, sir. Okay. So this is for today, and we stop here. Then we continue our example in the next lecture. So is there any doubt, any question in today's session? Anybody? No, sir. Sir. No, sir. Okay. So good day. Take care. We stop here.